Hello everyone, how are you? I hope you guys are fine and good. Some students are demanding and writing in the comment box, sir, please make a video on orthogonal machining operation. Please make some video on oblique machining. Please discuss the parameters of orthogonal machining and uh, shaper, drilling, broaching, on these all different kind of machining techniques. Make a short videos. But it's not possible for me to upload all the videos on YouTube on my channel. If you want to learn the whole machining techniques, the what is orthogonal machining, what is oblique machining, how these two are different from each other, what mechanisms are used, right? uh, to learn all these things, you need to join my Zoom lectures. Okay, so how do you get my Zoom ID? You can contact me on WhatsApp number. My number I will share you, and you can check a previous video. In previous video also I have shared my actually my home is nearby the railway station. That's why sometimes you get noise of the train. Okay, don't worry with it. Okay, in my previous video I have shared the mobile number. Okay, you can contact with me and I will get my Zoom ID. Okay, so now I'm going to start you the orthogonal machining operation and important parameters. So in this, maybe some basic concepts are required because that I'm not going to discuss. But I can say it's gonna be satisfactory for you, and it will be very helpful to you. Okay, and जो भी बच जाएगा, जो आपको लगेगा कि नहीं कुछ कुछ मुझे और जानना है, आज सर क्लास में बहुत बताते थे अभी नहीं बता रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मैं बहुत कुछ बताऊंगा अभी आपको, वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, लेकिन कुछ कुछ अगर और जानना है एक्स्ट्रा तो उसके लिए यू नीड टू ज्वाइन माय जूम लेक्चर्स. ओके, तो आप जूम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको फिर वहां पे बताऊंगा सारा चीज अच्छे से. तो अपन स्टार्ट करते हैं. ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, डिफरेंट पैरामीटर्स देखेंगे, फोर्स एनालिसिस देखेंगे, ऑब्लिक एंड ऑर्थोगोनल मशीनिंग में डिफरेंस देखेंगे, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे जिससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा और माइंड में एकदम याद हो जाएगा. तो ये लेक्चर मैं इस पे 3 वीडियो सीरीज बनाऊंगा, 3 वीडियो. उसको देखने के बाद यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू डोंट हैव टू सी एंड लर्न फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट एंड एनी YouTube channels. Okay, that is more than sufficient for you. And after that you just go and download the gate question bank and try to solve the problem from there. Okay, and kuch problems reh jayega, I know that I'm not going to cover each and everything on this channel, so you can contact me. Okay, start. What is this? Okay, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, एवरीवन प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? Everyone please subscribe this channel, please like, and please share with your friends. Everyone please share with your friends, right? Please share with your friends. Okay, this is very important topic for GATE. Everyone please share with your students, with your friends. Okay, now see, now I am going to see in Zoom lectures I am teaching this. This is what, do you know? Okay, on Zoom today's lecture, this is it was a today's lecture. Okay, now start. I am starting with the, okay, see I am starting. What is orthogonal machining operation? First anyone, can you tell me what is machining operation? What is machining? Machining is a manufacturing process. It is a part of manufacturing process in which we remove the excess material, we remove the unwanted material in the form of chips, with the help of a cutting tool, right? And what is cutting tool? Cutting tool is a body which make a physical contact with the workpiece and removes the excess material in the form of chips. And what is machine tool? What is the difference between cutting tool and machine tool? Machine tool is what? Machine tool is a tool which provides the necessary relative motion, between the tool and the workpiece. Suppose this is your workpiece and this is your tool. If there will be no relative motion, then how cutting takes place, right? So that's why to complete the cutting operation, some necessary relative motions are required, and that relative motions is provided by the machine tool. Can you tell me the example of machine tool? Lathe is the machine tool, because
whenever you hold the workpiece in a chuck, right, in the headstock, it provides certain relative motion. It provides a rotary motion to the workpiece, right? And you can provide the feed to the tool and the turning operation. Some operations are taking place there. So no, see, now I'm going to start orthogonal machining operation. Directly I'm going to start. What is the meaning of orthogonal? I'm going to discuss it here. Okay. I am speaking in English here because some students from South India demanded, sir, can you make your video in English so that we can also understand your lecture? So that's why I know you guys are comfortable with both the two languages, Hindi as well as English. So I will use both these, sometimes Hindi, sometimes English, okay, so that everyone can get understand. Okay, now start orthogonal machining operation. See, orthogonal machining operation. Orthogonal machining, okay. इसके नाम में ही इसका मीनिंग है. ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री. व्हाट इज 90? व्हाट इज 90 हियर? 90 यहां पे कहता है व्हाट इज 90 कि सपोज करो ये तुम्हारा एक कटिंग टूल है, ठीक है. तो ये कटिंग टूल है, तो ये कटिंग टूल का मैं एज मान रहा हूं, ये कटिंग एज है. तो ये कटिंग एज और ये तुम्हारा मान लो वर्कपीस है. तो ये कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी. पहला बात, ऑर्थोगोनल मशीनिंग एक हाइपोथेटिकल मशीनिंग ऑपरेशन है, आइडियल मशीनिंग ऑपरेशन है, ठीक. जैसे आप कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में. कार्नोट साइकिल क्या है? प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल है? नहीं है. प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल कौन है? ब्रेटन. ब्रेटन इज द प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल, रैनकाइन इज द प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल, है ना. ठीक उसी तरह सिमिलरली ऑर्थोगोनल इज एन आइडियल मशीनिंग ऑपरेशन. So then which one is the practical machining operation? Oblique machining is the practical machining operation, right? So now what is the ideal thing? What is the ideal assumption which you are making here? See, the ideal assumptions are: one, your cutting edge is straight. Your cutting edge must be straight. And second, the direction of the cutting velocity, the angle between the cutting velocity and the cutting edge will be 90 degree. These are the two assumptions in orthogonal machining operation. I am showing you the diagram here. See the diagram. This is the diagram for orthogonal machining operation. And one more thing I want to discuss. You see, those who want to get a good rank in GATE as well as engineering services examination, I would suggest them to follow this book. See, this book is very necessary. Manufacturing Science, Ghosh and Malik, the IIT Kanpur professor. Okay, this book is outstanding for manufacturing science, particularly main focus on machining. In GATE, they have copied around 3 to 4 problems from this book. Okay, I can show you one in electrochemical machining and second in orthogonal machining. In 2021 problem they asked from that book. They changed the little bit, they changed the digit, but the concept is almost same. Okay. Now see, in orthogonal machining operation, you can see this is your tool, right? This is your tool. This is your tool. Okay. Now some students having doubt how this is a tool. Okay, I am showing you. If you are having some doubt, I can show you. 1 minute. I can show you. See. First, you assume this is a cutting tool. Okay. ये कटिंग टूल है. अब ये कैसे है, इसके लिए तो हमें आगे देखना पड़ेगा. कटिंग टूल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. ऑल फोटोज. ओके, ये आप आगे मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा ये कटिंग टूल ये कैसे हो जाता है. कटिंग टूल का ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, टॉप व्यू पढ़ना पड़ेगा, फ्रंट व्यू पढ़ना पड़ेगा. अभी बस समझ लो ये कटिंग टूल है, ठीक है. चलो, तो ये हमारा कटिंग टूल है. और जब तुम टॉप व्यू देखते हो ना कटिंग टूल का, ऐसे एक्चुअली मैं दिखा रहा हूं, एक व्यू आता है कटिंग टूल का इस तरह का, राइट. It will be like this, right? And this will be like this. This is the front view of a cutting tool. जब तुम इसको ऐसे काट दोगे ना, यहाँ से ऐसे देखो, इस तरह कट करोगे तो ये पार्ट तुम्हें मिलेगा.
तो यही पार्ट है, इसको रोटेट कर दिया गया, रोटेट करके इधर बना दिया गया, देख रहे हो, इतना ही पार्ट है ये कटिंग टूल का ये वाला पार्ट है। इसी को घुमा दो, ऐसे करके घुमा दोगे यहाँ पे, ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उतना वो डिटेल में जब जाएंगे तो देखेंगे आगे। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना से बहुत न्यूमेरिकल बन जाएगा, 70% न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये है हमारा कटिंग टूल। अब यहाँ पे सर ये है हमारा कटिंग एज, देखो ये कटिंग एज है, ये जो एक्सटेंडेड है कटिंग एज, तो ये है हमारा कटिंग एज, कटिंग एज। ठीक है, तो ये था टूल, ये है कटिंग एज, ये चिप फ्लो कर रहा है, ये चिप क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। अच्छा, ये है तुम्हारा वर्क पीस है, और कटिंग वेलोसिटी, यहाँ पे एरो देखो, ये चिप इधर की तरफ जा रहा है, ये अनकट चिप है, ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है, क्या नाम है, ये क्या है, तुम्हारा कटिंग एज है, ये तुम्हारा एक कटिंग एज है, देखो तो ये कटिंग एज है, और इस डायरेक्शन में टूल मूव करेगा जिसको बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में अगर तुम बनाओगे तो ये तुम्हारा एक होगा कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, जो टूल मूव करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा कटिंग वेलोसिटी, और ये है कटिंग एज। तो कटिंग एज तो रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे, जिस वेलोसिटी से कटिंग एज मूव करेगा उस वेलोसिटी से ये अनकट चिप मूव करेगा, इसको बोलते हैं अनकट चिप। देखो ये जो पार्ट है ये चिप है, ये हमारा चिप है क्योंकि ये कट के बाहर जा रहा है, एक्सेस मटेरियल था, और ये वाला पार्ट शहीद होने वाला है। अभी देखो इसको अगर आगे थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा शहीद होने वाला है ना, तो ये पार्ट हमारा शहीद होने वाला है। तो इसको ऐसा कर दो, करेक्ट। तो ये पार्ट तुम्हारा शहीद होने वाला है, ये है कटिंग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना, कटिंग वेलोसिटी इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस। तो सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टूल, तो देयरफॉर द सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड से अनकट चिप जाएगा। तो ये तुम्हारा ये जो क्रॉस सेक्शन आएगा ये तुम्हारा अनकट चिप है। ठीक है, ये शहीद हो जाएगा इतना पार्ट। तो इसको बोलते हैं, याद रखना, इस पार्ट को जो कटने वाला है, जो कट के वापस जाने वाला है, इसको बोलते हैं अनकट चिप, अनकट चिप। ठीक है, और ये वाला पार्ट था चिप। ठीक है, अनकट चिप समझ गया सर। अच्छा, अनकट चिप मतलब अनकट मतलब अभी कटा नहीं है, ये कट के चिप बन जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, या अनडिफॉर्म्ड चिप, इसको बोलते हैं अनडिफॉर्म्ड, अभी इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऑथर इस चिप को भी क्या बोलते हैं, अनडिफॉर्म्ड चिप, तो ये भी लिख लो, और अनडिफॉर्म्ड चिप, अनडिफॉर्म्ड चिप। ठीक है, अनडिफॉर्म्ड चिप। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये अनडिफॉर्म्ड चिप था, ये अनकट चिप था, ये भी जा रहा है, ये यहाँ पे ये पार्ट कटने वाला है, ये टूल है, ये वर्क पीस है, इसको बोलते हैं मशीन्ड सरफेस। ये मशीनिंग हो गया है इसका, मशीन्ड सरफेस। ठीक है, इसको बोलते हैं मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस मतलब ये मशीनिंग हो गया है। ठीक है, और ये वाला पार्ट अभी मशीनिंग नहीं हुआ है ना, ये मशीनिंग नहीं हुआ है मतलब ये अनमशीन्ड सरफेस, अनकट चिप का पार्ट ये अभी मशीनिंग नहीं हुआ मतलब अनमशीन्ड सरफेस, तो इसको तुम बोल सकते हो अनमशीन्ड सरफेस, अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल क्यों है, क्योंकि कटिंग एज हमारा क्या है, स्ट्रेट, ये कटिंग एज होना चाहिए स्ट्रेट, ये इसके साथ कंडीशन है स्ट्रेट, ऑर्थोगोनल के स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट कटिंग एज होना चाहिए, तो स्ट्रेट कटिंग एज है हमारा। दूसरी बात, ये है कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये है कटिंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। बोलेगा दो क्यों है, इसलिए कि कटिंग वेलोसिटी रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लो तुम अगर सामने से देख रहे हो ट्रेन जा रही है, तो अगर तुम स्टेशनरी हो तो तुम्हें लगेगा कि ट्रेन वी वेलोसिटी से जा रही है, और ट्रेन में जो आदमी है उसे क्या लगेगा कि तुम वी वेलोसिटी से जा रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम बात है यहाँ पे, या तो तुम बोलो अनकट चिप की वेलोसिटी या तुम बोलो कटिंग एज की वेलोसिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री होगा, उसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन, ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन। और जो कि फिजिकली, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे, we cannot maintain 90 degree angle between the cutting edge and cutting velocity, okay, practically impossible to achieve।
तो दुनिया का कोई भी कटिंग ऑपरेशन ऑर्थोगोनल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी तुम लिख दो कि सर ये जो होगा आपका, ये जो होगा सर आपका ये 90 डिग्री होगा। वेरी गुड। नाउ ये चिप जा रहा है दोस्त मेरे, ये चिप जा रहा है इधर। तो एक बात बताओ, अब क्या करते हैं, ये है हमारा कटिंग वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अगर अब इसका तुम देखो, इसका तुम अगर यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा और देखोगे, तो ये अनकट चिप था, तो अनकट चिप का ये जो पोर्शन है, ये चिप है, तो इसको नाम दिया जाता है, देखो ये मोटाई है चिप का, ये मोटाई है, थिकनेस, ये चिप का थिकनेस है, और ये अनकट चिप का थिकनेस है, तो इसको नाम देते हैं टी। समझना अच्छे से, इस वाले पोर्शन को, इस पार्ट को नाम दिया जाता है टी, ठीक है, जितना कट के अलग होने वाला है टी। और इसको नाम दिया जाता है टीसी। क्या नाम दिया जाता है? टीसी। देखो देखो गौर से, ये है हमारा टीसी, ठीक है, चिप थिकनेस, ये है हमारा चिप थिकनेस, चिप का थिकनेस है ना, और ये है हमारा अनकट चिप का थिकनेस। अच्छा, तो ये अगर थिकनेस हो गया सर, तो ये पार्ट भी थिकनेस होगा, बिल्कुल होगा। तो इस पार्ट को बोलते हैं विड्थ, बी, इस पार्ट को बोलते हैं बी, ठीक है। तो इस पार्ट को सर बोलेंगे क्या? इस पार्ट को बोलेंगे दोस्त बीसी। क्या बोलेंगे? बीसी, राइट। तो सर ये बताइए, ये अगर बीसी है विड्थ ऑफ द चिप, और ये टीसी है थिकनेस ऑफ द चिप, और ये है हमारा वीसी चिप वेलोसिटी, ये क्या है? वीसी चिप वेलोसिटी, ये है हमारा चिप वेलोसिटी वीसी, इस वेलोसिटी से चिप जा रहा है ना। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे दोस्त? इस एरिया को क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो। इस एरिया को, ये एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चिप। तो सर ये जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चिप, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चिप होगा। तो इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी चिप का क्या बोलोगे? बीसी इंटू टीसी बोलोगे, बोलो बीसी इंटू टीसी बोलोगे। देखो बीसी इंटू टीसी यही होगा ना एरिया, बीसी इंटू टीसी क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो अच्छा, इसके बारे में अगर कोई पूछेगा कि ये बता दो दोस्त क्या है, इसके बारे में कोई पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो इसको तुम बोलोगे कि सर ये जो है आपका, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ अनकट चिप, मतलब अनडिफॉर्म्ड चिप। तो इसको अनकट चिप को ए से डिनोट कर रहे हैं, एरिया अनकट। तो ये हो जाएगा सर बी इंटू टी, हो जाएगा बी इंटू टी, बी इंटू टी। तो इस डायग्राम से क्या क्या सीखे सर? पहली बात सर, ऑर्थोगोनल मशीनिंग अगर होगा उसमें कटिंग एज स्ट्रेट होगा, और दूसरा कटिंग वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से कटिंग एज आगे की तरफ बढ़ रहा है, कटिंग एज आगे की तरफ बढ़ रहा है इस अनकट चिप को काटने के लिए, और the angle between the cutting edge and the cutting velocity is 90 degree. So write the definition first, write the definition, you can note it down. Okay, write the definition first, the definition of orthogonal machining operation. See I am writing the definition. The definition of orthogonal machining operation is you can see the definition will be in orthogonal machining operation. See, first point, this is your a cutting takes place such that a cutting, first condition is when the cutting edge is straight, when the cutting edge is straight, not inclined, straight. And second is your the angle between the cutting velocity, okay, some author write cutting velocity as a relative velocity. Obviously cutting velocity is nothing but the relative velocity between the tool and the workpiece, correct? It is the W oblique P means workpiece, this is the tool. So cutting velocity is the relative velocity between the tool and the workpiece. Therefore the angle between the cutting velocity and
the cutting edge and the cutting edge and the cutting edge, the angle between the cutting velocity and cutting edge must be 90 degree. Must be 90 degree, right? Must be 90 degree, which means the cutting velocity is perpendicular to the cutting edge. Cutting velocity is perpendicular to the cutting edge. Therefore, this is the cutting velocity. It will be perpendicular to cutting edge. These are the 3 points regarding the orthogonal. Now we have to study the mechanics of orthogonal machining. Okay. So now to discuss the mechanics of orthogonal machining, since we are going to discuss the mechanics, so in mechanics we first learn the mechanics of what? The 2D orthogonal machining operation. The 2D orthogonal machining operation. So what is 2D? See, it is a 3-dimensional geometry, na? So first you have to convert it into 2D geometry. How can you convert it? So you can analyze the top view, front view and side view. In all the 3 views, you will get a certain 2D geometry. Okay. So now I am going to analyze this orthogonal machining in this front view, right? In this front view. Okay. See, so before starting this, I want to write what we learned here. That is, first, sir, you have denoted V as a cutting velocity, right? V as a cutting velocity, correct? V as a cutting velocity. And VC as a chip velocity. VC as a chip velocity. Velocity of the chip. Okay. Okay. Now next is your. Okay. What is the chip velocity? You can also say chip velocity as the relative velocity between the between the chip and the tool. The VC is the relative velocity between the chip and the tool, right? And V is the relative velocity between the uncut chip and the relative velocity between the tool and the workpiece, right? Workpiece means uncut chip, you can say. Relative velocity between the chip and the tool is VC, and relative velocity between the workpiece and tool is your V, right? Here, sometimes they change the problem. They will not directly ask you find out the cutting velocity. They will write the word find out the relative velocity between the tool and the workpiece. This is the relative velocity between tool and the workpiece Fine. Second will be your VC. VC is your chip velocity. Chip is passing through what? Chip is passing over rake face, and rake is a part of cutting tool. This is your rake face. See, this is your rake face. This is the rake face, right? This face is called rake face. In tool signature, I will explain all these things. What is rake face? What is relief face? Each and everything. Okay. The chip velocity is the relative velocity between the chip and the tool. And one more velocity will come into picture later. That is your shear velocity. So I will discuss later. Okay. Now T is your uncut chip thickness. Uncut chip thickness. Okay, uncut chip thickness, and TC is your chip thickness, right? Now, can anyone please tell me which one is greater, T or TC? Which one is greater? Please let me know, anyone. Chip thickness or uncut chip thickness, which one is greater? Now see, now you can see, suppose, see, here what happened? This is the rake face. This is the chip. This chip is moving, right? This chip is moving like this. Now what will happen? As the chip flow, there is the relative velocity between the tool and the chip.
and we know whenever relative velocity come into picture, to oppose the relative velocity, friction will come into picture. So now there will be a frictional force applied on the chip, right? So as the frictional force come into picture, there will be loss of energy in the form of heat. So you can see, suppose whenever you rub your hand like this, whenever you rub, you are doing some work and friction is there, you can see the temperature of your hand, you are increasing, right? So therefore आप देख सकते हो कि हाथ क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, हाथ थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है. तो सिमिलरली whenever the chip will flow over the rake face, heat will produce there, right? And due to that heat, thermal expansion takes place. Thermal expansion. And due to thermal expansion, you have studied in the strength of material, delta L is equals to L alpha delta T. As the temperature, there is a temperature variation and alpha is the coefficient of thermal expansion, then there will be the permanent change. There will be a change in the dimension of the material. So the TC will क्या, तो TC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा, ड्यू टू हीट थर्मली क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा. तो हमारा चिप थिकनेस क्या होगा, चिप थिकनेस ज्यादा होगा. ठीक है, इससे किससे, टी से. तो चिप थिकनेस हमारा ज्यादा होगा. पिक्चर क्लियर. तो अपन बोल सकते हैं कि TC will be greater than equal to T, okay, due to thermal deformation. Thermal deformation. अच्छा एक बात बताओ, लेकिन ओनली इन डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, परमानेंट फ्रैक्चर हो जाएगा. ब्रिटल मटेरियल में परमानेंट फ्रैक्चर होगा, वो इल्डिंग के बाद सीधे क्या होता है, टूट जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है. देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन इन ब्रिटल मटेरियल. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल it is valid in ductile material, right? So deformation is valid in ductile material. In brittle material you can say TC is equals to T, है ना, कोई डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है उसमें. इट इज वैलिड इन ब्रिटल मटेरियल. ओके चलो, तो एक टर्म को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, स्मॉल आर इज चिप थिकनेस रेशियो. चिप थिकनेस रेशियो, ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो. तो ये चिप थिकनेस रेशियो जो वैल्यू क्या है, ये है T बाई टी सी. क्या है, T बाई टी सी, याद रखना. तो एक बात बताओ, T बाई टी सी मतलब अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस. तो अनकट चिप थिकनेस हमेशा क्या होता है, कम होता है, चिप थिकनेस ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये है हमारा स्मॉल आर चिप थिकनेस रेशियो, इसको याद रखेंगे. ठीक है. अच्छा, अब आर की वैल्यू कोई पूछेगा कि बताओ 1 से बड़ी होती है 1 से कम होती है, तुम बोलना आर विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1. आर विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1. करेक्ट. इक्वल टू फॉर ब्रिटल मटेरियल एंड लेस देन फॉर डक्टाइल मटेरियल. वेरी गुड. नाउ कम टू पॉइंट. अब देखो बी और बीसी के बारे में भी बात किया हो गया यहाँ पे. बी और बीसी, बी क्या है दोस्त, बी क्या है, बी है हमारा विड्थ ऑफ अनकट चिप. अच्छा, बीसी क्या है, विड्थ ऑफ चिप. ठीक, चलो, विड्थ ऑफ चिप. अच्छा, लेंथ की वेलोसिटी की बात कर लिए, तो लेंथ का ही तो रेट ऑफ चेंज होता है, वेलोसिटी होता है ना. तो ये जो जिस रेट से चेंज हो रहा है, मान लो इसको तुम लेंथ मान लो. देखो यहाँ पे अगर तुम इसको मान लोगे कि सर ये जो है हमारा ये लेंथ है, देखो यहीं तक था ना, इसको अगर तुम मान लो सर ये लेंथ ऑफ अनकट चिप है और ये हमारा लेंथ ऑफ चिप है, मान लो इसको ऐसा, LC, लेंथ ऑफ चिप. ठीक है, तो इसको भी तो तुम लिख सकते हो LC और L, लेंथ ऑफ अनकट चिप. इसी रेट वेलोसिटी आएगा ना, जिस रेट से ये लेंथ घटता जाएगा उसी के हिसाब से तुमको वेलोसिटी मिलेगा. रेट ऑफ जो वेलोसिटी होगा बाय टाइम लेंथ निकाल लोगे. ठीक है, तो ये तुम्हारा जो निकाल लेना कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा लेंथ इनटू टाइम, इस तरह का. इस तरह तुम्हारा ये निकल जाएगा. तो ये देखो यहाँ पे अगर लेंथ की बात करें, तो अब हम अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो तो एक और टर्म जो हमारा आएगा यहाँ पे L आएगा. तो L हमारा आ जाएगा, L आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ अनकट चिप, सॉरी,
वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो वेलोसिटी के टर्म में लिख देंगे, लेंथ के टर्म में लिखना है लेंथ के टर्म में लिख देंगे। एलसी आएगा हमारा लेंथ ऑफ चिप। चलो सारा पैरामीटर हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। एल और एल सी समझ गए, बी बी सी समझ गए, टी टी सी समझ गए, वी वी सी समझ गए, सब चीज समझ गए। अब देखो, अब हमें 2D एनालाइज करना है, 2D एनालिसिस, ठीक है। 2D के बारे में हमें अब देखना है। द मशीनिंग ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई two-dimensional figure. Now you have to represent two-dimensional orthogonal machining operation. It is the 3D orthogonal machining. Now I am going to represent two-dimensional orthogonal machining operation. देखो, two-dimensional orthogonal machining operation. देखो, two-dimensional orthogonal machining. देखो, टू डायमेंशनल ऑर्थोगोनल मशीनिंग हमारा कैसे आएगा। कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूं करके। 1 मिनट, मैं फोटो यहाँ पे एक नया ले रहा हूँ आसानी के लिए। देखो, कुछ करना ही नहीं है, ये तुम्हारा फोटो था, ये तुम्हारा फोटो है, इसको यहाँ पे रहने दो। अब मुझे ये एक बात बताओ, ये तुम्हारा इसको देखना है तो तुम यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देखो, ऐसे इस व्यू में इसको एनालाइज करके मुझे दिखाओ, ठीक है। चलो इस व्यू में मुझे एनालाइज करो इसको। चलो यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, तुम बैठ के देख रहे हो। अब इस व्यू में अगर तुम इसको बैठ के देखोगे तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हें ये फेस दिखेगा, ऐसा ये दिखेगा तुम्हें, ये दिखेगा? मतलब सर मुझे सिर्फ थिकनेस दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। तो मैं शेड कर रहा हूं, कौन कौन दिखेगा तुम्हें, देखो तो तुम्हें दिखेगा, ये दिखेगा ऐसा। अच्छा, ये पार्ट दिखेगा ऐसा, बोलोगे हाँ। ये दिखेगा ऐसा, बिल्कुल दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये अब तुम बोलोगे सर ये जो लाइन है और ये लाइन, ये दोनों कॉन्साइड कर, ये कर्वेचर है, अगर तुम स्ट्रेट लाइन मान लोगे तो लगभग समझने के लिए ये कॉन्साइड कर जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा ना, जब इस व्यू से देखोगे तो ये दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। तो चलो, तो हमें सर ये वाला इस तरह जाएगा ऐसे, मैं बोलूंगा बिल्कुल। ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह आएगा ऐसे, और ये वाला लाइन जो है हमारा कॉन्साइड कर जाएगा। कौन? ये लाइन और ये लाइन कॉन्साइड करेगा। अच्छा, उसके बाद सर ये वाला ऐसा जाएगा इस तरह। इतना ही दिखेगा सर हमें इस व्यू में, बिल्कुल सही, यही दिखेगा ही। अच्छा, अब बताओ तुम मुझे एक चीज बताओ, इस व्यू में तुम्हें कौन कौन सा पैरामीटर दिख रहा है, मुझे बताओ। वी, वी और टी, इस तीनों में कौन दिख रहा है? तीनों में तुम बोलोगे सर मुझे वेलोसिटी दिखेगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ये वेलोसिटी होगा। इधर मुझे दिखेगा कि चिप वेलोसिटी है, बिल्कुल सही, चिप वेलोसिटी भी दिखेगा। तुम्हें चलो वेलोसिटी लिख दो, तुम बोलोगे सर ये वीसी दिखेगा, यस वीसी दिखेगा, बिल्कुल। इधर की तरफ बना दो, मैं इधर बनाता हूं, ठीक है। इधर भी बनाना है, इधर भी बना सकते हो, रिलेटिव टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इधर ही रहने दो। तो ये तुम्हारा वी दिख रहा है इधर। चलो सर एक कटिंग वेलोसिटी दिखेगा, चिप वेलोसिटी, और क्या दिखेगा? और तुम बोलोगे सर ये थिकनेस दिखेगा, विड्थ नहीं दिखेगा। यहाँ पे ये जो था आपने बताया था, इसको थिकनेस माना था सर, और इस वाले को आपने विड्थ माना था, इस वाले को आपने थिकनेस माना था। देख लो यहाँ पे टी, देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा यही पार्ट है ना, ये थिकनेस है, देखो यही दिख रहा है ना, तो ये पार्ट तुम्हारा थिकनेस है। तो 2D मॉडल में हमें थिकनेस दिखता है, वेलोसिटी दिखता है, विड्थ हमें नहीं दिखता है, ये आप याद रखोगे। वी आर अनेबल टू सी द विड्थ इन द 2D मॉडल। ओके, देखो तो 2D मॉडल में आओगे तो तुम्हें दिखेगा सिर्फ थिकनेस, तो थिकनेस को देख लो। थिकनेस अगर तुम लिखोगे, तुम बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा थिकनेस टीसी, सही बात है, ये हो जाएगा थिकनेस टीसी। अच्छा, ये वाला इधर की तरफ आएगा ऐसे इस तरह, तो ये वाला सर हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ठीक। तो सर अगर एक बात बताइए, अगर इसको मैग्नीफाई कर दें, ये जो फोटो है ना, इस फोटो को काटो और इसको मैग्नीफाई कर दो, बड़ा कर दो ऐसे। जब बड़ा कर दोगे देखो क्या बनेगा, मैं बना रहा हूँ, देखना, बोलना कि वही बन रहा है कि नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको बड़ा करके बना रहे हैं, देखो ये कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले देखो मैं कैसे बनाता हूँ, तुम देखना वैसा बन रहा है कि नहीं। ये ऐसा हमारा एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसा। अच्छा, ये मैं ऐसा, मैं इसको सटा नहीं रहा हूँ एकदम, इसमें थोड़ा सा रिलीफ एंगल आपको बताने के लिए
मैं इसको पूरा कांटेक्ट में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, मैं इस लाइन को पूरा यहाँ पे सटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये रिलीफ एंगल रहता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये चिप फ्लो करेगा हमारा, तो ये हमारा यहाँ पे चिप फ्लो कर रहा है ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा चिप फ्लो कर रहा है और ये है हमारा चिप कर्ल, राइट, थिकनेस है। तो मैंने इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया है। अब देखो तुम यहाँ पे, अब देखो यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये लाइन जो था, ये लाइन और इस लाइन को भी मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया, मेरा अजम्पशन था ये, इस लाइन को भी मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया, ठीक है। तो ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये एक जगह कोइंसाइड कर गया, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये चिप वेलोसिटी है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर अच्छा ये वाला पार्ट जो तुम्हारा इधर दिख रहा था ये थिकनेस था टीसी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा थिकनेस हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम अब इसको एनालाइज करोगे, देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जब इसको तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सर ये पार्ट जो है, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो है हमारा ये ज्योमेट्री हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टीसी को, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ये टीसी है ना, ये इसको मैंने ऐसा कर्व कर दिया, कर्व को बस इस कर्व को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये वाला पार्ट हमारा, ये डॉटेड, ये कटिंग वेलोसिटी, मतलब सर ये इस डायरेक्शन में और ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसी को बोलेंगे चिप वेलोसिटी, बिल्कुल सही। तो ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये हमारा चिप वेलोसिटी है, वीसी, बिल्कुल सही। अच्छा अब आगे देखो, अब सर ये जो कटिंग टूल का ये जो कटिंग पॉइंट है, ये वाला ये कटिंग पॉइंट है, तो ये रिलेटिव है, ये इधर जा रहा है अनकट चिप, तो ये इधर आएगा इस तरफ, ये हो जाएगा क्या, कटिंग वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो इधर की तरफ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी। तो इसको आगे अगर बना दो इस डायरेक्शन में, ये तुम्हारा हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी, हो जाएगा इस तरफ, ये आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी, हो जाएगा कटिंग वेलोसिटी। अच्छा सर तो ये वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा फिर, थिकनेस दिखता है ना, थिकनेस और वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा टी। तो देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या दिखा, ये थिकनेस था, ये वेलोसिटी था, ये थिकनेस था, ये वेलोसिटी था, ठीक है, और ये वीसी था, ये टीसी था। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव टर्म है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो तो ये बन गया, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में दिखा दो, उतना कोई ये नहीं है, ठीक है, इसको डॉटेड कर दो, ठीक है, ये डॉटेड लाइन कटिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अच्छा अब देखो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे अब तुम बोलोगे कि सर इसमें जो आया हमारा, ये था हमारा मशीन्ड सरफेस, हाँ मशीन्ड सरफेस, तो ये 2D व्यू बन गया दोस्त। अच्छा ये था हमारा अनकट चिप, क्या था, अनकट चिप, चलो ये था अनकट चिप। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये था तुम्हारा टीसी, ये था चिप, ये चिप फ्लो कर रहा है, ये था तुम्हारा टूल, ठीक है, और ये है तुम्हारा चिप, चिप फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ये है तुम्हारा चिप। चलो अब यहाँ पे एक एंगल आता है हमारा, अब दो एंगल आएगा, एक एंगल आता है ऑर्थोगोनल रेक एंगल, कैसे आता है, इस फेस को बोलते हैं रेक फेस, इस फेस को बोलते हैं रेक फेस, इस फेस को बोलते हैं रेक फेस, ठीक है, और इसको बोलते हैं मशीन्ड सरफेस। तो मशीन्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मशीन्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और रेक एंगल और मशीन्ड सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, द एंगल बिटवीन rake face and the line perpendicular to the machined surface is called orthogonal rake angle, okay। तो यहाँ पे हमारा एक एंगल आ जाता है, एक एंगल आ जाएगा, करेक्ट, तो इसके बीच के एंगल को, ये हमारा ऑर्थोगोनल रेक एंगल, इसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा, याद रखना, अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मशीन सरफेस एंड रेक फेस, राइट, इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, रेक एंगल। चलो अब एक वर्ड आता है यहाँ पे शियर प्लेन, शियर प्लेन आएगा, कैसे आएगा, शियर ऑफ, क्यों, क्योंकि मशीनिंग क्या है, एक शियर फेलियर ऑपरेशन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे कि अनकट चिप, मतलब अनकट मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, चिप में, मतलब शियर ऑफ हो रहा है। तो एक प्लेन मिलेगा यहाँ पे हमारा, उस प्लेन को, वो जो प्लेन है वो, दैट प्लेन लाइज बिटवीन अनकट चिप एंड चिप, मींस बिफोर दैट प्लेन यू विल गेट अनकट चिप,
आफ्टर दैट प्लेन यू विल गेट चिप। ओके, तो वहां पे डिफॉर्मेशन जोन होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। यहाँ पे डिफॉर्म होता है मटेरियल, है ना, और अनकट से कट की तरफ जाता है, तो शियर ऑफ होता है। तो इसी प्लेन का नाम दिया गया है, इस प्लेन को नाम दिया गया है क्या, शियर प्लेन। तो ये जो हमारा प्लेन यहाँ पे है इसका नाम है शियर प्लेन। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, शियर प्लेन। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग शियर प्लेन, तो इसको अपन याद रखेंगे, नॉलेज में रखेंगे। तो ये है हमारा शियर प्लेन। देखो, तो ये हो गया हमारा शियर प्लेन। और शियर प्लेन और कटिंग वेलोसिटी, शियर प्लेन और एक्सटेंडेड मशीन्ड सरफेस, मशीन्ड सरफेस है, इसका एक्सटेंशन है। तो शियर प्लेन, द एंगल बिटवीन शियर प्लेन एंड द कटिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड शियर एंगल, इज कॉल्ड शियर एंगल। तो रिमेंबर दिस इज द शियर एंगल, राइट, शियर एंगल। So this is the 2D model. This is the 2D model of orthogonal machining operation. Remember this figure, okay? 2D model of orthogonal machining operation. Okay, so here we learn two new angles. Two new angles. The first one is your alpha. Alpha is your orthogonal rake angle, right? And phi is your shear plane angle. Shear plane angle. Okay, now see the analysis of velocity in this. Now see the analysis. Suppose now I am considering only the chip velocity and cutting velocity, and with the help of these two velocity we will get a new velocity that is called your shear velocity. So how we will get it, see, क्या करेंगे, इस दोनों वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे। तो ये वेलोसिटी हमारा कटिंग वेलोसिटी है, ये शियर वेलोसिटी। तो आओ इसको ड्रॉ करते हैं। तो एक बात बताओ, ये कटिंग वेलोसिटी जो तुम्हारा है वो रेक फेस के पैरेलल है, ये रेक फेस है, ये कटिंग वेलोसिटी है। तो इस कटिंग वेलोसिटी को रेक फेस के पैरेलल है, तो वेक्टर है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर इसको यहां से उठा के यहां रख दो, इस वेक्टर को यहां रख दोगे अगर, तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो इसके ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, बताओ, क्योंकि ये है अल्फा, टोटल है 90, टोटल है 90, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये एंगल है हमारा 90 माइनस अल्फा, इसको मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये एंगल है हमारा 90 माइनस अल्फा, इसको याद रखेंगे, लेकिन उतना कंसर्न नहीं है, कंसर्न है अल्फा और फाई से। तो चलो इसको देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं एक बार कि अगर सर आपने जैसा बताया, चलिए इसको फॉलो करते हैं, येलो कलर है तो इसको फॉलो अगर करते हैं, तो ये है आपका सर, ये है आपका कटिंग वेलोसिटी, मैं बोलूंगा यस कटिंग वेलोसिटी है, ये है कटिंग वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद टूल बना दो, तुम बोलोगे टूल जो था यहाँ पे, टूल तुम्हारा यही था ना, ये था तुम्हारा टूल, चलो, और ये एक्सटेंडेड था इस तरह। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा चिप फ्लो कर रहा था, समझना बात को अच्छे से, यहाँ पे तुम्हारा चिप फ्लो कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वीसी वेलोसिटी था, इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सर। और ये एंगल जो था, ये वाला एंगल, ये एंगल था 90 माइनस अल्फा, था ना। तो यहाँ पे सर ये वाला जो आपका एंगल हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा वीसी, चिप वेलोसिटी, यहाँ पे बोलो होगा, ये चिप वेलोसिटी होगा। अच्छा, ये एंगल जो था 90 माइनस अल्फा, ये परपेंडिकुलर एंगल क्या था, अल्फा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर तुम इसको शिफ्ट करोगे, अब ये जो वेक्टर है इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दें इस जगह पे ऐसे इसके पैरेलल, मतलब इसको उठा के कैसे देखो दिखा रहे हैं, ये वीसी है, अब इसको अगर शिफ्ट करोगे, देखो देखो ये वीसी है, इसको अगर उठा के देखो यहाँ पे, देखो देखो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर यहाँ पे इसके पैरेलली उठा के शिफ्ट करके यहाँ लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आराम से तुम ला सकते हो, स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो इस वेक्टर को अभी ये पोजीशन पे था ना, मैं इसको यहाँ पे ले आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलो इसको यहाँ पे रहने दो तुम, ये यहाँ पे है। अब इसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊं इस तरह, ये v था, इसको देखो यहाँ पे, ये अगर ऐसा आ जाए, ये अगर आपका ऐसा आ जाए, ये है आपका v, ठीक है। और ये स्पेस में यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ये है आपका, बोलो ये है आपका vc। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे सर, बिल्कुल कर सकते हैं vc। तो सर ये बताइए ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी होगा 90 माइनस अल्फा, होगा ना, क्योंकि ये कहाँ पे ला रहा हूँ, इस जगह पे ला रहा हूँ, ऐसे इसके पैरेलली, इसके पैरेलली इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इसके पैरेलली मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। इसके पैरेलली अगर आप शिफ्ट कीजिएगा सर, तो ये भी एंगल होगा आपका 90 माइनस अल्फा, बिल्कुल होगा, होगा। तो ये यहाँ पे आ गया। अब बताओ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर इसमें ऐड कर रहे हो, तो इस वेक्टर का हेड है यहाँ पे, इस वेक्टर का टेल है, इस वेक्टर का हेड ये है, इस वेक्टर का ये टेल है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ऐसा, इसका ये हेड होगा, ये टेल होगा। तो इसी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं, शेयर वेलोसिटी। तो इसका रिजल्टेंट मान लो ये ऐसा मिल रहा है, ये रिजल्टेंट, ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट मिला। तो ये तुम्हारा जो आएगा, इसका एरो इधर होगा, और द रिजल्टेंट ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड chip velocity is called your shear velocity and it lies on the shear plane। तो shear plane और cutting velocity के बीच का एंगल क्या होता है, फाई। देखो यहाँ पे, अब आ जाओ तुम यहाँ पे फाई, तो यहाँ पे इसके along एक वेलोसिटी आ गया, इसी प्लेन पे एक वेलोसिटी आ गया, इस प्लेन पे एक वेलोसिटी आ गया, इसका और इसके वजह से रिजल्टेंट। तो shear velocity जो हमारा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं vs। इसको क्या बोलते हैं, vs, shear velocity along the shear plane। तो एक वेलोसिटी आ गया हमारे लिए vs, तो इसी को बोलते हैं। तो ये आ गया जैसे ही shear velocity। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ये 90 माइनस अल्फा, ये फाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? The sum of all the three angles in a triangle is 180 degree, therefore this angle is 90 minus phi minus alpha, 90 minus phi minus alpha, 180 minus 90 minus alpha plus phi। So whenever you do this, you will get 90 minus phi minus alpha like this. Okay, so this diagram is what? This diagram is the famous velocity triangle in orthogonal machining operation. Famous velocity triangle in orthogonal machining operation, right? This is the velocity triangle in orthogonal machining operation. So remember this, velocity triangle in orthogonal machining operation, correct? Everyone, मजा आ रहा है, लाइक करो, मजा आ रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो दोस्तों में। तो ये है हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल फेमस, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वेलोसिटी ट्रायंगल में ये याद रखना कौन कौन के बीच का क्या एंगल है। कटिंग वेलोसिटी और चिप वेलोसिटी के बीच का 90 माइनस अल्फा, चिप वेलोसिटी और शेयर वेलोसिटी 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, और फाई है शेयर और इसका। और ये हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आया होगा। अगर ऑर्थोगोनल मशीनिंग से प्रॉब्लम आएगा तो इससे आएगा ही, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है इसका आने का, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे क्लास 12 में? क्लास 12 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े होगे, साइन रूल पढ़े होगे, लगा दो साइन रूल। साइन रूल लगाओगे क्या होगा, v अपॉन साइन 90 माइनस 5 अल्फा, vs अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, vc अपॉन साइन, हो जाएगा। चलो लगा दो। तो अप्लाइंग साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल, अप्लाइंग साइन रूल, चलो साइन रूल लगाओगे क्या आएगा दोस्त, क्या आएगा, v अपॉन साइन, v के सामने क्या है, v के सामने 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस 5 माइनस अल्फा is equals to vc upon sin phi। चलो is equals to आफ्टर vc vs अपॉन, देखो vs अपॉन sin 90 माइनस अल्फा, vs अपॉन sin 90 माइनस अल्फा, vs अपॉन sin
90 माइनस अल्फा, राइट। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा v अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा vc अपॉन साइन फाइव, और ये आ जाएगा vs अपॉन कॉस अल्फा, करेक्ट। बोलो आएगा v अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू vc अपॉन साइन फाइव इज इक्वल्स टू vs अपॉन कॉस अल्फा। तो ये हो गया भैया वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, इसको याद रखना है, ठीक है। वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, वेलोसिटी रिलेशन इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ओके। तो v अपॉन cos फाइव माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू vc अपॉन sin फाइव। नाउ अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें एक चीज और देखो, तुम एक चीज और देखो जरा, एक बात बताओ मुझे, ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो कि अगर अब ये तो हमने सीखे वेलोसिटी रिलेशन, इसको अपने पास रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं, एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ कि जिस रेट से अनकट चिप कटेगा, जिस रेट से अनकट चिप कटेगा उसी रेट से चिप क्या होगा, निकलेगा। या कंजर्वेशन ऑफ मास हम लगा सकते हैं यहाँ पे, मास फ्लो रेट, सी द कंजर्वेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द मटीरियल रिमूवल रेट ऑफ अनकट चिप, जिस रेट से अनकट चिप रिमूव होगा उसी रेट से चिप बनता जाएगा। मटेरियल का तो लॉस हो नहीं रहा है, नहीं गायब हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, बीच में कहीं से नहीं हो रहा है ना, जितना कटेगा उतना निकलेगा चिप के फॉर्म में, सिंपल सा बात है। means the rate of removal of uncut chip is equal to the rate of removal of chip. You can do like this, okay। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, the rate of removal of uncut chip, uncut chip जिस रेट से निकलेगा is equal to the rate of removal of chip। चलो, तो रेट ऑफ रिमूवल हम लोग मान रहे हैं मास फ्लो रेट, जिस रेट से ये इसका मास रिमूव हो रहा है, या वॉल्यूम रेट भी मान सकते हो क्योंकि रो तो सेम है। तो अगर तुम देखो मास फ्लो रेट ऑफ अनकट चिप, ऐसा अनकट चिप, मास फ्लो रेट ऑफ अनकट चिप इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ चिप। मास क्या होता है, रो इंटू वी, तो रो ऑफ अनकट चिप, अनकट, रो ऑफ अनकट चिप into volume dot of uncut chip, volume dot is equals to rho dot of chip into volume flow rate of chip। बोलो होगा, तो रो तो सेम होगा ना, सेम मटेरियल है, तो भैया जो चिप अगर लोहे का है तो अनकट चिप भी तो लोहे का ही होगा ना, मटेरियल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। तो वॉल्यूम डॉट मींस वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट क्या होता है, A1V1 होता था ना, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम फ्लो रेट को एरिया इंटू वेलोसिटी, क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो एरिया ऑफ अनकट चिप, एरिया ऑफ अनकट चिप इंटू वेलोसिटी ऑफ अनकट चिप इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ चिप is equals to velocity of chip. We can use this. A1V1 is equals to A2V2 directly we can use. Okay, continuity equation. We can apply continuity equation. So now tell me the area of uncut chip is what? Area of uncut chip. देखो area of uncut chip, तो uncut chip ये thickness इसका B है और ये क्या था B, तो B into T। देखो यहाँ पे बताया है ना, यहाँ पे देखो
देखो यहाँ पे तुम, यहाँ पे देखो दोस्त यहाँ देखो, यहाँ पे एरिया लिखे थे, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकट, सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनकट चिप क्या है, बी इंटू टी, है ना, विड्थ इंटू थिकनेस, और इसका क्या था, बीसी इंटू टीसी, विड्थ इंटू थिकनेस, तो विड्थ इंटू थिकनेस को याद रखना, एरिया यही होता है, तो विड्थ इंटू थिकनेस, तो ये तुम्हारा आ जाएगा दोस्त, ये तुम्हारा आ गया क्या, ये तुम्हारा आ गया विड्थ बी इंटू टी इंटू, ये हो गया एरिया, एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ अनकट चिप क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ अनकट चिप, ये अनकट चिप है, अनकट चिप के तरफ कटिंग टूल आ रहा है वी वेलोसिटी से, तो अनकट चिप भी कटिंग टूल की तरफ जाएगा वी वेलोसिटी से, रिलेटिव टर्म है, तो अनकट चिप की वेलोसिटी क्या है, वी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी छोटा सा, तो ये वी है, मतलब ये अनकट चिप वी वेलोसिटी, मतलब जो कटिंग वेलोसिटी होता है वही अनकट चिप की वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो अनकट चिप की वेलोसिटी होगी कटिंग वेलोसिटी के बराबर, तो ये हमारा आ जाएगा v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा bc इंटू टी सी इंटू चिप वेलोसिटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, b इंटू टी इंटू वी इज इक्वल्स टू bc इंटू टी सी इंटू वी सी, ठीक है, तो इस इक्वेशन को भैया भूलना नहीं, एकदम याद रखना, ठीक है, एकदम इसको याद रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, b into t, area into velocity is equals to area into velocity. Now see what happened here, now what we can write, if we write the conservation of volume, in that case we can write b into t into l is equals to bc into tc into lc, later on I will write, now it is our assumption, now we take the assumption that width remains constant in orthogonal machining, this is a standard assumption, width remains constant throughout, width remains constant throughout, width remains constant throughout the machining, throughout the machining width remains constant means b is equals to bc, this is my assumption, right, width is constant throughout, as the width is constant throughout, meaning is when the width is constant throughout, it will be suppose, right, when the width is remains constant, then it will be cancel out and you will get the result that t into v is equals to tc into vc, right, therefore t by tc is equals to vc by v, right, vc by v, t by tc is equals to vc by v, this is the result, this is the result, t by tc is equals to vc by v, okay, okay, now see, this is the result, now as we know t by tc is what, chip thickness ratio, t by tc is what, chip thickness ratio, iska matlab it means chip thickness ratio is equivalent to t by tc as well as vc by v, both gives you chip thickness ratio, but when the width remains constant, then only you can equate t by tc as vc by v, if the width will start varying, then in that case this formula is not valid, okay, so therefore a small r, this result is very small r is t by tc is equals to vc by v is equals to vc by v, and you know vc by v will be what, from velocity triangle, please tell me vc by v, vc by v is sin phi upon cos phi minus alpha, this is the vc, you can write here vc by v is equals to, this will go here, sin phi upon cos phi minus alpha, so vc by v will be this, from where, velocity triangle, so vc by v sin phi upon cos phi minus alpha, so this is the sin phi, 1 minute, I will write it, first write vc by v, we can write what, lc by time upon l by time will be cancelled, so this will be length of the chip upon length, right, length of the uncut chip, sometimes you have cylindrical workpiece, suppose sometimes cylindrical workpiece and you are doing turning, in that case it will be cylindrical workpiece, the length of the chip will be pi d, pi into dc, and this will be your pi d,
the perimeter, only this length will be removed, right? That is, the length will be in cylindrical workpiece, you can say pi dc plus pi d. Okay, and this will be vc by v will be equals to this is the result. And now I am writing, as we know, see, right, this we can write as cos phi upon sin phi minus alpha, right? Cos phi upon sin phi minus alpha, cos phi upon sin phi minus alpha, you can see cos sorry, sin phi upon cos phi minus alpha, sin phi upon cos phi minus alpha, sin phi upon cos phi minus alpha. This result is very important, sin phi upon cos phi minus alpha, right? Sin phi upon cos phi minus alpha. Remember this result. This result is very important here. Very important this result is. Right, this result is very important. So this is, you are having first formula, second, third, fourth, fifth. 5 equations you have to calculate chip thickness ratio. Okay. Now I am going to find out the shear angle. How can we find out shear angle with the help of chip thickness ratio? Okay. Now let's move. Suppose this will be your r, small r, and sin phi upon cos phi minus alpha it is. So now I am proceeding in this manner, that 1 by r is equals to cos phi minus alpha upon sin phi. Is it right? Therefore 1 by r is equals to cos a into cos b plus sin a into sin b upon, tell me upon sin phi. Upon sin phi. Any problem? Now 1 by r, this will be what? Cos alpha upon tan phi, right? Plus this will be sin alpha. Sin alpha, whenever you divide this equation by sin phi, now you can write, sir, cos alpha upon tan phi, right? This will be 1 by 1 minus r sin alpha upon small r. Now from this equation, some students are very familiar with this equation, which I am going to prove it now. Very familiar. This is the formula, very famous formula, r cos alpha upon 1 minus r sin alpha. This is the heart of orthogonal machining. This formula is, right? तो ये तो याद रखना ही है. जो बोलेगा मैं इसको याद नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा. ये जितना भी स्टार मान लो उतना कम है, इसमें हर साल गेट में आता है. ठीक है. tan phi is equals to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha, where phi is the shear angle. तो by using this formula, r is the chip thickness ratio. r कैसे निकालोगे? बोलना जो भी दे दे, थिकनेस रेशियो दे देगा तो ऐसे निकालेंगे, वेलोसिटी दे देगा तो इससे निकालेंगे, लेंथ देगा तो इससे निकालेंगे, डायमीटर देगा तो इससे निकालेंगे, एंगल देगा तो इससे निकालेंगे. सब बता दिए. ठीक है. तो पांचों से जो देगा उससे निकाल लेना r. तो r निकल जाएगा. ऑर्थोगोनल रेक एंगल दिया हुआ रहेगा, ऑर्थोगोनल एंगल रेक एंगल दिया रहेगा, फाई निकाल लेना. कोई प्रॉब्लम किसी को इस फॉर्मूले में? tan फाई निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी को? कैसे निकलेगा शेयर एंगल? कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये तो हमने देख लिया कैसे बनाया इसको. ठीक है. ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किया, बन गया ये. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. इसमें कुछ काम बचा हुआ है अभी. इस डायग्राम में, ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, ये डायग्राम ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे ये जो शेयर प्लेन है, इस शेयर प्लेन का थिकनेस बता सकते हो दोस्त? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शेयर प्लेन हियर? देखो सुनो, अगर तुम मान लो ये है तुम्हारा A, ये है तुम्हारा B. ठीक है. अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ठीक है. तो मान लो तुम, ये तुम्हारा था कटिंग वेलोसिटी, यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट है तुम्हारा C. देखो ये,
तो तुम्हें चाहिए ये थिकनेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन क्या दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन थिकनेस दिखा रहा है, और मैंने टी को कम रखा है, टीसी को ज्यादा रखा है, क्यों? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये थिकनेस था हमारा, तो ये थिकनेस हमें चाहिए दोस्त, ये थिकनेस हमें चाहिए। कैसे निकलेगा? ट्रिग्नोमेट्री से। सर ये अगर थिकनेस है तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो दिस विल बी टी, राइट? करेक्ट। तो विच मीन्स दिस विल बी टी, राइट? This will be again T, right? T. So then what is this? Phi is there. Then the thickness of shear plane, now I'm going to calculate. It will be what? I'm writing here, thickness of shear plane, see. Thickness of shear plane. Okay, this is the TS, thickness of shear plane. This will be what? See, in this triangle, if you apply in triangle ABC, correct? In triangle ABC, in triangle ABC, right? Sine phi is equals to what? Sine phi is equals to BC by AB, correct? And BC is what? T. And AB is what? AB is your, AB is nothing but thickness. AB is nothing but thickness, right? AB. So therefore, AB is equals to what? T by sine phi. Therefore, the formula is thickness of shear plane is T by sine phi. T is uncut chip thickness. T is your uncut chip thickness. Are you getting my words? Everyone, are you getting my words? You can write in your notes, the thickness of shear plane is T by sine phi. T by sine phi. T upon sine phi. Correct. This is the thickness of the shear plane. Shear plane thickness. Correct. T by sine phi. Note it down. Thickness of shear plane T by sine phi. Phi is the shear angle and T is the uncut chip thickness. Okay. T by sine phi. Now let's move. I am showing you some different figure. Okay, T by sine phi, we got it. Thickness. Now I am making another figure. See. See. See, this is the diagram, and now I am making, this will be your dotted part, extended machine surface. Extended machine surface. Okay, now I'm extending this part like this, right? And this will be my extended part. Correct. It is going like this. It will be go like this. 3D figure I just want to make, right? See, and this extension part will be like this. See, it will be like this, and this will be like this. Sorry. This will be like this. And it will be right. It will be like this. Okay. Now you can see it will be like this. 3 diagram I am making, right?
It will be like this. So this is how a 3D diagram will be formed. Okay. Now. 1 minute. There will be some change here. Right, it will be like this. This is a diagram which I make. This is a 3D diagram so that I can calculate the area of the shear plane here. Okay. See, in this, if you analyze, this cross section is your what? This cross section is your uncut chip cross section, correct? This is your uncut chip cross section. So this is your what? This is your B. Sorry, this is your T, and this is your B. This is your B, right? And this area is B into T. This area is area uncut chip, AU. That is B into T. Very good. Now. This is your what? This shaded part is your what? Tell me. This will be, sir, this will be TC, right? Correct. And this will be what? BC, correct? Therefore, this area will be AC, A uncut chip, A chip. So AC will be BC into TC, right? AC will be BC into TC, correct? Now you can see it is flowing like this. We have to calculate the area of the shear plane. So now this will be, this shaded part is your shear plane, correct? This shaded portion is your shear plane. This is a shaded portion. This is your shear plane. Now, please, will you tell me the area of the shear plane in this? This is your shear plane, correct? This will be your shear plane. This will be your shear plane, right? This will be your, everyone, maza aa raha hai? Shear plane. Now the area of this shear plane will be what? See, this length is your what? AB, which we have calculated earlier. That here in this, we have assumed this as a AB, this line, this yellow line was AB, and now we are getting a geometry like this, right? A quadrilateral we are getting like this. Okay, so this is AB. AB is what? T by sine phi. So this is your AB, right? This is your A. This is your A, correct? This is your A, right? And this is your B, this is your C, this is your D. Therefore, this value is T by sine phi. And since this is our assumption that width remains constant, this is B, this will be B, and this will be BC. So throughout we have assumed that width will be constant. Therefore, this width will be constant throughout same dimension. Okay, so this will also be equal to B, right? This will be B. Then the area will be B into T by sine phi. Therefore, the area of the shear plane, I'm calculating it, see. Therefore, the area of the shear plane will be, this will be ASH, B into T by sine phi. This will be BT by sine phi. So this you need to remember always, BT by sine phi. BT by sine phi is the area of the shear plane, right? Area of the shear plane is BT by sine phi. BT by sine phi. This is the area of the shear plane. Any problem? Any problem? This will be your BT by sine phi. This is the area of the shear plane, right? So this will be the area of the shear plane. Now we need to learn few more parameters here. That is your
First is your what is chip shear strain? What is chip shear strain? Because there will be one shear force will come into picture here. Now you can denote the velocity here. See, the velocities will be like this. The velocity is, this is your VC, chip velocity, this is your VC, correct? And in this plane, the velocity will be, this will be your V. And here in this plane, you will have the velocity, that is your Vs, right? Vs, shear velocity. This is a 3D dimension, 3D representation of this. Okay, here VC is there, here Vs is there, here V is there in this. Okay, so I think now you got it, how to draw the 3D as well as the 2D representation of an orthogonal machining operation. So everyone, if you enjoyed, please let me know. Write in a comment box, share with your friends that today everything is clear, how to draw 3D as well as 2D diagram of orthogonal machining operation, right? Now see, now what is the value of chip shear strain? Gamma. Gamma, because shear force will be there, then whenever shear force come into picture, shear strain, there will be some strain induced in this chip portion. Therefore the chip shear strain induced, next is chip shear strain, this is your gamma. Chip shear strain is gamma. See, I will make a video 15 minutes in which I will explain you how did we get this formula, right? In this lecture I am only writing, you can see the next video because some other parameters is required. So next video definitely you will see. Okay, now gamma is, chip shear strain is tan phi minus alpha plus cot phi. This is the formula of chip shear strain. Remember this, tan phi minus alpha plus cot phi. This is the chip shear strain. गेट में क्या पूछेगा, ये तो डायरेक्टली पूछ सकता है. फाई कैसे निकालेंगे दोस्त? फाई निकालेंगे किस फॉर्मूले से? अल्फा तो दिया रहेगा, फाई नहीं दिया रहेगा तो निकालेंगे tan phi is equals to r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा. इस फॉर्मूले से फाई निकाल लेंगे, tan इनवर्स करके यहाँ पुट करेंगे, निकल जाएगा चिप शियर स्ट्रेन गामा. अच्छा, पूछेगा कि मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन कितना होगा? क्या पूछेगा? मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन. तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है हमारा, अल्फा डिपेंड करता है टूल ज्योमेट्री पे. जब तक कटिंग टूल चेंज करेगा तभी चेंज करेगा कौन? अल्फा. ठीक है, अल्फा फिक्स होता है. चेंज क्या करता है? फाई. जैसे जैसे शेयर प्लेन चेंज करेगा तुम्हारा, ये शेयर प्लेन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा हमारा. फाई क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा. तो फाई मशीनिंग पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेरिएबल क्या होता है हमारा? फाई. तो इसको अगर हमें चाहिए कंडीशन फॉर मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन, तो अपन क्या करेंगे, एक तो इसको तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा अगर चिप शियर स्ट्रेन पूछेगा. ठीक है, इसको तो याद रखना है. पूछेगा कंडीशन फॉर मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन, कंडीशन फॉर मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन. चलो एक बात बताओ मुझे, मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन अगर तुमसे पूछ रहा है तो क्या बोलोगे दोस्त? मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो? वो क्या बोलता है, अगर किसी फंक्शन का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा. बिल्कुल होगा. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. वेरिएबल कौन है यहाँ पे? फाई. फाई क्या है? वेरिएबल है. अल्फा क्या है? कांस्टेंट है. तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो. इसको डिफरेंशिएट करो. व्हेन वी डिफरेंशिएट इट, डी गामा बाई डी फाई, d gamma by d phi, this value will be what? What is differentiation of tan? It is sec square phi minus alpha minus cosec square phi, right? Now for minimum value of chip shear strain, we know the first derivative will be 0, so therefore for minimum this will be 0. It will be your sec square phi minus alpha plus, sorry, not plus, minus cosec square phi, right? It will be your cosec square phi is equals to sec square phi minus alpha. So whenever you do a square root on both the sides, root under x square is what? Mod x. Mod x, right? I am taking the positive value.
So putting a square root, cosec phi is equals to sec phi minus alpha. Any problem? Sec phi minus alpha. Now tell me, do you know these results that cosec phi is cosec phi, you can write sec 90 minus phi, sec 90 minus phi, and this will be your sec phi minus alpha. So this condition you are getting in GATE 2012. One problem is asked on this. You can see in the question bank. This is 90 minus phi alpha. So this will be your 2 phi minus alpha is equals to 90 degree. This is the condition. 2 phi minus alpha is equals to 90 degree. So first write like this. Okay, this is the condition. And second, at this condition gamma will be minimum. At this condition gamma will be minimum. If you use this condition, gamma will be minimum. Okay. Now you can also write phi is equals to 45 degree plus alpha by 2. We can use like this. Right. 45 degree plus alpha by 2. Whenever you extend it. Now see. What is this phi? This is the shear angle at which the gamma will be minimum. Right. This is the shear angle at which the gamma will be minimum. Gamma value will be minimum. Right. This is the shear angle at which the gamma value will be minimum. Now you can write here the shear angle at which minimum shear strain will be induced in the chip. लाइट नहीं है, लाइट वो है नहीं, the shear angle at which minimum chip shear strain induced in the chip, right? See. Okay, so this is what? This is the shear angle at which the minimum chip shear strain induced in the chip. This is the shear angle at which the minimum chip shear strain induced in the chip. So in GATE they will ask you to find out this. What is the phi? Okay. Any problem? So whenever you put this value phi in the actual, this is the actual expression. So here you calculate this phi. This phi is calculated by tan phi is equals to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha. Then you will get actual chip shear strain. And to get the minimum chip shear strain, you have to put the value of phi as 45 degree plus alpha by 2. You have to put this value. Whenever you put this value here, you will get the minimum chip shear strain. So now put this value to get the minimum chip shear strain. It will be gamma minimum is equals to tan phi minus alpha, 45 degree plus alpha by 2 minus alpha plus cot tan phi minus alpha plus cot phi. Cot phi will be 45 degree plus alpha by 2. The result is gamma minimum. क्या आ रहा है हमारा चिप shear strain? Tan 45 degree minus alpha by 2 plus cot 45 degree. क्या आ रहा है result? Gamma minimum is equals to tan 45 degree plus alpha by 2 cot 45 degree plus alpha by 2, right? Tan 45 degree minus alpha by 2 plus cot 45 degree plus alpha by 2, which means it is independent of phi. Minimum chip shear strain is independent of phi. It only depends upon orthogonal rake angle, right? So this is the formula of gamma minimum, and this is the phi for gamma minimum. In GATE 2012 they asked the shear angle
एट विच मिनिमम चिप शियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड, राइट। तो सारे क्वेश्चन को आप सही से समझिए, क्या पूछ रहा है आपसे। एक्चुअल शियर एंगल कैसे निकलेगा, tan phi is equals to r cos alpha upon 1 minus r sin alpha। वो शियर एंगल जब चिप शियर स्ट्रेन मिनिमम होगा वो कैसे निकलेगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। गामा चिप शियर स्ट्रेन क्या होगा, tan phi माइनस अल्फा प्लस cot phi। गामा मिनिमम क्या होगा, tan 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 प्लस cot 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चिप शियर स्ट्रेन निकाल सकते हैं, शियर एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और हमारा अगर आप इसमें टर्म्स देखोगे कि सर और क्या क्या निकाल सकते हैं और बता दो, तो इसमें आप और निकाल सकते हैं, एक टर्म निकाल सकते हैं, क्या देखिए, एक निकाल सकते हैं आप गामा डॉट शियर स्ट्रेन रेट। ये चिप शियर स्ट्रेन के बाद एक अगला टर्म आता है गामा डॉट शियर स्ट्रेन रेट। देखो शियर स्ट्रेन रेट, शियर strain rate of shear, this is gamma dot, this is what gamma dot will be, gamma dot is actually d gamma by dt, right। The differentiation of shear strain with respect to time will give you rate। इसका यूनिट क्या होगा, स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, देयरफॉर रेट ऑफ shear strain rate will be per second, unit will be per second, because it has no unit, right। it has your no unit upon this will be your time, the time having second, therefore the unit is per second or second inverse, right। second inverse or per second, this is the unit of shear strain rate। तो इसको या तो आपको गामा दिया रहेगा, टाइम का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएट कर दोगे तब निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हमें चाहिए पर सेकेंड, तो हम इसको ऐसे भी निकालते हैं, गामा डॉट इज shear velocity upon thickness of shear plane, ts, shear velocity upon thickness of shear plane, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ shear plane कैसा था, ps तो था shear velocity और थिकनेस ऑफ shear plane था t by sin phi, था कि नहीं। थिकनेस ऑफ shear plane पढ़ाए हैं, देखो t by sin phi, देखो यहाँ पे बताएं, देखो 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 यहाँ पे लिखे है ना कहीं पे, देखो थिकनेस ऑफ shear plane, देखो थिकनेस ऑफ shear plane t by sin phi, थिकनेस ऑफ shear plane t by sin phi, ये थिकनेस, ये क्या आया था, t by sin phi, ट्रिग्नोमेट्री लगाए थे, आ गया था, है ना, फाई shear एंगल था, तो ये हमारा आया था t by sin phi। चलो पिक्चर क्लियर। तो t by sin phi थिकनेस होता है shear plane का, और t क्या है, अनकट चिप थिकनेस, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, सब चीज दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है। तो ये आ गया हमारा vs बाई टी साइन फाई। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे गामा डॉट का, vs बाई टी साइन फाई। अच्छा vs कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल से, vs अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ट्रायंगल से। तो याद रखेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, वेलोसिटी ट्रायंगल से, वेलोसिटी ट्रायंगल, ये होगा गिवन, ये जनरली गिवन रहता है अनकट चिप थिकनेस। और ये फाई कैसे निकालेंगे, ये वाला फाई निकलेगा, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा, समझ रहे हो। तो इस तरह ये हमारा निकल जाएगा। एक्चुअल निकालना है, एक्चुअल फाई, मिनिमम वाला मत डाल देना, ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, 45 डिग्री ये वाला, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, ये वाला मत लगा देना, ये अलग है, ये वो शियर एंगल है जब चिप में मिनिमम शियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड होगा, ये मत लगा देना खुश होके, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या सीखे इसमें, गामा डॉट, चिप शियर स्ट्रेन सीख गए, एरिया ऑफ शियर एंगल सीख गए। और मैं बताता हूँ एक दो पॉइंट, कुछ कुछ और है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, एक दो पॉइंट और है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो
एक दो पॉइंट और क्या है, एक दो पॉइंट और है। चिप शियर स्ट्रेन, देखो देखो यहाँ पे क्या क्या है। चलो चलो फिर ठीक है। तो ये हम समझ गए, ये था हमारा बेसिक इतना। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक हमारा एंड हो गया यहाँ पे जो 3 टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक मैं डालूंगा अभी वीडियो, इसके बाद अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला वीडियो, अगले वीडियो में मैं डाल रहा हूँ क्या, अगले वीडियो में मैं डालूंगा इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, और फोर्स एनालिसिस इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि मर्चेंट सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द मर्चेंट सर्कल विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स एनालिसिस, नेक्स्ट टॉपिक इज योर फोर्स एनालिसिस इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन। और मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जूम पे, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जूम पे एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 सितंबर से। ठीक है, जिनको भी मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है या थर्मल पढ़ना है, मैकेनिकल का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या फीस है, they can ask me directly on my WhatsApp and they can call me. I am going to start, this is my number 8527014884. Okay, so on 1st September morning 9 a.m. I am going to start a batch of manufacturing. Okay, so we will discuss the manufacturing from basics to advanced level, and for including SSC, GATE and ESE, everything. Okay, and IRMS. For all exam, we are going to discuss each and every problem, okay, from manufacturing topic. Okay, तो आपको अगर मजा आया इसमें, इस टॉपिक में, तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेट मी नो विच टॉपिक इज very difficult for you to understand in mechanical engineering. I will make videos on that topic. Okay, please let me know everyone. Thank you.